Is my screen visible? No, sir. Screen is not visible. Yes, sir. Oh yeah, screen is visible. Bismillah walhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah. So we talk about the Git and GitHub, right? So this is our Git and the GitHub. What is it all about? What are the commands we're gonna use? And we're gonna do the practically the stuff. So this Git and GitHub is actually the version control system. What do you call it? A VCS. Okay, we call it as a VCS, version control system. Okay. So what is version control system? When we say VCS, why is not writing by the ways? It should write VCS, version control system. This is very important system. We need to have, being a developer, you need to have the VCS, and on your resume you should be able to tell them that you know each and everything of the VCS. And for that we got the two things, one is the Git and one is the GitHub. Okay, we need to know how to set up the Git environment. You must have already done it, everybody must have done it. Then how to create a Git repository. Okay, and how to do checkout to the different versions. The checkout means to roll back. For example, you have the restore, the system restore in your system. Okay, of different dates. So if you don't like or some issues happen, you should be able to check out in these terms. The Git terminology, we have the checkout. That means you are going back to you're rolling back to some well-known or some state which is good for you. Okay, so that means we need to have a different stages where from we can restore our stuff to some state which we know is good, right? Or there should be some ignore files which we may talk about tomorrow. Okay, that there should be many things which should not be in a public domain. We should ignore them, right? Right now it doesn't seem better. When we do practically, you understand that. Then we have a lot of Git tools. Basically, it's not just a tool, it's a skill set. Remember that thing. And you need to have this skill set in you if you are a developer, if you are working in a team, or even you are working individually. You are just a one person. Okay. Okay. Now we go to the next slide. Somebody has popped up. Admit. Okay, so why we need to have version controls? Because you may say sometimes that this is my final, this is my final version, this is my final version. Okay, right? Then you do that final, then you start showing that final version to the boss or somebody, the client. Then the revisions start happening, the revision 2, revision 6, revision 8, and revision 22, until you bang your head on a monitor. The revisions start continuing and the customer is not satisfied, your boss is not satisfied, and there are sometimes different requisitions come up. Okay, and even the whole requirements change sometimes, so you have to all the time change your code. So you need to build systematically your code. And not only that, but sometimes you do the collaboration, right? You are not a single person who is working on a project, right? But there is a multiple people who are working on a project. This is what happens all the time. That means, for example, you have a project, okay, and you are building, for example, the front end. Not even a front end, but even the piece of a front end, because maybe your project is big and you are working on a one department. Okay, and your other friend is also working on a front end, but he's working on other department. Maybe you are building, say, for example, college system, and you are building, say, for example, library. Other guy is building the departments, other guy is working on a teachers, other working on a students. So that means you are having what is called as a branch. In the Git terms, we have what's called as a branch. Right now we have the default branch is the main branch, and you are working on this branch, and you have created a one version. Then you went on to create a second version of it. You started creating the third version of it, and so on. You're updating your stuff, and in the meantime you're uploading your repository and all, and you have moved on. But from other side, the other guys are working in their own domain on the same project. They are working on different stuff, and you are going on your way, they are going their way.
Other friends, they are also working on the same project but on different domain. And sometimes you want to merge them together here. So this is what collaboration is. This is only possible when we have the Git. If we do not have a Git, then this scenario is not possible. Where we branch, this is called as the branching. We branch, that means our other guys, our other friends are working on something else. Maybe they are working on backend, not necessarily front end only. But even front end, there are many things to develop. So some people are working on a look and feel, some working on some things HTML maybe, some are working on the functionality, say for example JavaScript, and some people are working on the back end, and they are there having, the back end guys are working on their versions, they are taking up their versions and all. Later on you have to combine into a single domain, and this will be only possible but when you have the Git. So you have the versioning, you have the rolling back, you have the understanding of the project and all, right? These all things work together. Do you understand? So multiple students or developers are doing a project. Okay, so now you may say, why not the Google Drive and OneDrive? Okay, where you can put up things in a shareable mode. But one is called as a source code management, one is called a file storage management. The Google Drives, the OneDrives, they're file storage managements. They are not the source code managements where we have the versioning of the same code. Okay, where we have the rolling back, where we have what I called as the checkout. The rolling back is called the checkout. And you have the collaboration. We will see each and everything, how we gonna do that. Okay. So is Git only the version control system we have? No, there are many like CVS, Subversions, Mercurial, and the Git. The most important thing in a Git is it's an open source and it's famous. As you could see, the you say MacBook, they have already the Git in it. So you see VS Code, they have the Git in it because everybody is using the Git, because it has the whole libraries right now, which is the Git, and its partner is GitHub. You should understand that Git is actually the Git is on your local machine, okay, on your laptop, and the GitHub is the website where you want to share, or you do the version control, or you want to do the checkouts, and you do everything what you want to do with the Git, but you want to do it in globally. You want to do collaborations. Then in the collaboration, other people should see your work, and that is why we need to have a GitHub. But if you are working individually, if you are working just off your own and on your laptop, that means you need to have a Git only. That is on your laptop. So that means it's not necessary that if you need to have GitHub also along the Git, right? So why Git? It's most commonly used software for tracking changes in any set of files. Okay, you can use a coordination, collaborations, and many more. And it's much better than the older versions like CVS and Subversions. Okay, the history and all, you can read about it. We are here for the practicals and all. So like it's a Linux systems developed by the Linus Torvald. He's the guy who in 2005 actually created the Git, and it's based on the Linux actually. So that's why we have Linux like commands when we take the Git on its shell, right? And its name was also kind of from his name, like Linus Torvald and all, and so on. And what is GitHub? So GitHub is developed by what? So it's some kind of a threat, right? Really, you see the one strut, and PJ Hyde, Tom Peterson, and all, they developed this guy, and which is it's a site for your online storage, the Git repositories which are on your system, and the GitHub is your on the online, the website for that's the cat comes in, okay, the logo of the GitHub. So if you have a GitHub, so I mean, if you are using the Git, do you also need to use the GitHub? Not necessary. So because Git is if you are individually working, but if you are working on a collaboration, or even you are individual, still sometimes you need the GitHub. Why? Because you are putting up on your resume that you have these projects. You want people to hire them up. So what we did in our portfolio, we gave them the GitHub address, right? So that they can see our projects, and after seeing our project, they can hire us. This is the GitHub is our who you are actually. So this is the Git and this is the GitHub.
Now I guess this is quite obvious now, right? I will send this PPT to you guys later on so that you can understand. Now comes the question about the working of Git and GitHub, right? That's what is the prime objective of today's class. The working of Git. Everybody with me? Hello. Yes, sir. So Git versus GitHub. And if you are on a Git or on a GitHub, you are trying to build a repository, right? A repository is actually a folder in which you have all the project files. It's not necessarily you're a developer. It's not necessarily you are a developer and you have a code files only. You could be a storyteller and it's all your stories here. You could be a poet and these are all your poems. So Git and GitHub is not necessary that you are a developer, only you guys can use it. It can be used with the scientists, it can be used with the poets, it can be used with any person, okay, in a world who is doing some work, who is writing, who is doing some writing, and who is updating his work. He needs it. Maybe you are you are developing a thesis, okay. In a thesis, you are updating your thesis. You are putting up things, going on, going on, going on. Sometimes you feel it's bad, you should roll back, right? And you are upgrading your thesis and all, and it can be your repository also. So it can be a repository of anyone. Now, how to create a repository? Git side or GitHub side? We can do both ways, right? We can go through the Git, that means from your system itself. You can do it from the terminal, just from the terminal. You have the terminal, or you have the command prompt, or you have the DOS shell, okay, or Windows shell, PowerShell, whatever you have. And you have if you have a Windows, then you have the Git bash already installed, right? So you can use the shell, any kind of a shell, or in a Mac we call it is a terminal, right? You can have a terminal or you can have a shell. You can do that, but the for the developers, we don't do from the shell. We use the VS Code, and we use the terminal of VS Code to do the stuff, right? This is the one thing. Now, if you want to create a repository, you can go from the Git side or you can go from the GitHub side. It's your choice, right? We can go from the GitHub side and then clone it to get the stuff into our system, or you can start from the Git side, okay? That means from your laptop side, because Git is the laptop, it's on your laptop, the repository on your laptop, locally on your local machine, okay? You can start from there, then what is called as a push stuff into the GitHub, or you can start from here and then put it into clone it into our system. That's called as a cloning. We'll do the cloning all tomorrow. Yes, today we start from the Git. We start from the Git, that is our local machine. From local machine, we start creating repository. And we need to first understand the architecture of our Git. So how the Git works. The first thing first, we have what is called as a working directory. You may have the working directory. Whatever the working directory you have, that means a directory, a folder in which your files are. Like in VS Code, we create some folder, so it is your working directory, right? In which your folders are. Like I create a folder, then I put up into that the index.html, I put the style.css and etc. in a particular folder. So that is my present working directory, pwd. In fact, it's a command of the Git. If you say pwd, it will give you that directory, the whole path. Now, what you have is a working directory. This is your working directory. Okay, it's not writing properly. I don't know what directory. Okay. Now you start creating your files into it. You may create the index.html, the style.css, or script.js, or whatever, any files, any many files you create here. That is how we created things. Now, what is the Git doing here? Now, after you create your directory, you create your working directory and you create the files in it using the touch, or simply creating in the VS Code. Right click and create new files or folders, whatever you like to call it. Or in the Git, we can use a command called touch to create our files, okay?
and these files are created locally on this machine. Now if we ask Git about these, about our working directory, and tell us that show what is there, and it will show you that these files are untracked. They call it as an untracked files. It will call them as an untracked files. Keep the story clear, then it will be easy to do it in a code. I mean practically untracked files. So what is the untracked file? That means they are not in a Git repository. They are not in a Git repository. If you want to show it to list what directories I have here, I use the ls command, and if I say ls minus a, that is show me the hidden files also. There will be no one file called .git, which is a hidden file, because if normally we created in our VS Code the folder and the files in it. It was not Git repository. Why? Because it was not having this file .git. The rest it was having everything, but .git was not having it. So we need to have a Git repository. So we will see how to do it. Okay, which will have the .git. Got it? Now after you have these files which are untracked because they are not in the Git repository, you need to do something to put them in another stage. Okay, and we call that as staging area. It is called as staging. Yes, repeat with me. What is called? Staging area. So from your present working directory, you have to put those files into the staging area. Now how you do that? You will use a command called git add. You will use command what? Git add. So when you apply the git add on a particular file, say for example you have index.html here, and you use git add index.html. Now this index.html will be put into the staging area. Now your staging area will be kind of, where you have the different those versions. So it will have those different versions. So I will make them some shelves here. Okay, in this shelf is one version of that file, second version of file, third version of file, and so on. So staging area is in between where we have the different versions of that file. Now if you are satisfied with a particular version and you say, okay boss, it's good, now it is okay, then you need to put it into the local Git repository. So we have another area called as local, okay, Git repository. Now जो मेरे repository में अब है वो मेरा final version है, इन सब का final version है, यानी कि ये मेरी जो फाइल है ये perfect है. क्यों आपने बीच वाला क्यों रखा है? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, आपको हो सकती है जो आप इस local repository में नहीं रखना चाहते हैं, because you don't want later on to put it into the GitHub. Why? Because there are many files which are like the passwords, like many confidential stuff which you don't want to put into the repository. So we have the staging area. This is the staging area here. Staging area. This is the present working directory. From present working directory, you will put it into the staging area using the git add command. Okay. Then from the staging area, you have to put something. You are satisfied that okay, this is the final version now. Now put it into the local Git repository by using what is called as a git comment. We use a command called git commit. Okay, you are committing. That means you are putting the stuff into the local Git repository. Now after you have put the stuff into the Git repository here, okay, now that's nice. Now my local Git repository is having a stuff. Now for example, from the present working directory, you started editing again. And you just mess it up. इसमें errors आ रहे हैं. तो आपका जो previous version है वो save है, यहाँ पे save है. तो अगर आपने ठीक किया, जो नया काम आपने अपने फाइल्स पे यहाँ पे किया, जो फाइल्स आपके पास यहाँ है, अब आप इसको और एडिट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और वो ठीक है, आपका ठीक है, फिर आप उसको फिर ऐड करोगे इसमें स्टेजिंग एरिया में, फिर उसको आप क्या करोगे काम, फिर इसको गिट कमिट करके आप लोकल रिपोज में करोगे तो आपका वर्जन सेकंड बन जाएगा. ठीक है, आपका पहला वर्जन लॉस नहीं हो जाएगा, वो वहीं पे है, और सेकंड वर्जन भी आ जाएगा. अब फॉर एग्जाम्पल आपने फिर से ऐड किया इसमें.
लेकिन अब आपने मैसअप किया, वहाँ पे बहुत सारे एरर्स हो गए या कुछ मसला हो गया, देन यू कैन जंप बैक टू पर्टिकुलर, आप किस वर्जन पे जाना चाहते हो, you can roll back to the you can roll back from this local repository to back to the जो यानी कि जो आपकी फाइल यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी में है, जो कि मैसेड अप हो गई है, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे जम्बो शम्बो डाल दिया है जो कि नहीं डालना चाहिए था, वो वापस हम यहाँ से ला सकते हैं, हमारे वर्जन्स है, सो वी कैन गेट बैक आवर वर्जन फ्रॉम हियर एंड अपडेट आवर, जो आपकी फाइल है वो बिल्कुल वैसी ही लगेगी जैसे कि उससे पहले थी, as if you had not edited using a command called git checkout. Okay, now repeat with me. We said that we need to have firstly what? The create a directory, okay, and create files in that, right? And after creating files in that, we need to do what? Stage. We need to put Git them in the add. staging area using the command Git add. git add. ठीक है ना, ठीक हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा सबको? जी सर। उसके बाद स्टेजिंग एरिया में आप सेटिस्फाई हैं कि आप इसको आप कमिट करना चाहते हो, तो अगर आप कमिट करना चाहते हो ठीक है, जिस फाइल को आप कमिट करते हो, क्योंकि इसमें सारी फाइल्स हैं, आप किस फाइल को कमिट करना चाहते हो आपकी मर्जी, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सो व्हाट्स कॉल्ड गिट इग्नोर, जो हम कल इसके ऊपर काम करेंगे। गिट इग्नोर में किस किस फाइल को आप रखना चाहते हो वो कमिट नहीं होगा, उसमें से वो चीज़ें कमिट नहीं होगी, ठीक है, ये एक्सेप्शंस में आ जाएंगे वो चीज़ें। अब जो कमिट किया आपने वो किस में जाएगा, लोकल गिट रिपॉजिटरी में। उसके बाद आप अगर चाहते हो कि वो गिट हब पे आप डालें वो चीज़, अगर आप लिंक करना चाहते हैं अपनी लोकल रिपॉजिटरी टू द एक्सटर्नल गिट हब जो कि साइट है, ठीक है ना, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, और ये पहले इनको लिंक करना पड़ेगा, आपको रिमोट खड़ा करना पड़ेगा, और ये लिंक करना पड़ेगा आपका लोकल रिपॉजिटरी विद द गिट हब, और फिर एक कमांड लगेगी गिट पुश, और इस पुश से जो आपकी लोकल रिपॉजिटरी है वो एक्सटर्नल वेबसाइट में आ जाएगी। स्टोरी समझ में आ गई? ठीक है जी, Yes. जी सर। shall we do it now then? Yes. So open up the terminal, say new terminal। तो यहाँ पे जो न्यू टर्मिनल है, तो न्यू टर्मिनल आ गया यहाँ पे, तो पहले आप यहाँ पे क्या करें, काम आपके टर्मिनल पे आ गए, आप CD डेस्कटॉप करें, आप डेस्कटॉप पे आ जाएं, ठीक है, आगे डेस्कटॉप पे यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा है, सो आई एम कमिंग टू द चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। कोई कमांड्स हम अगर डॉस की नहीं आती समझ, तो ये बिल्कुल डॉस की कमांड्स हैं, जैसे डॉस करते थे हम। CD में चेंज डायरेक्टरी, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू द डेस्कटॉप। ऑन द डेस्कटॉप व्हाट यू विल डू इज यू विल क्रिएट अ डायरेक्टरी, जैसे या तो हम सीधे वहीं से कर देंगे न्यू फोल्डर जैसे ना हम करते हैं, और वी कैन create from here the make directory, mkdir means make directory means make some folder, maybe I call it as a mern, right, I call this folder as a mern, my parent folder जिसमें मैं अपना project रखूँगा। And mind you one thing, I am not I should basically, maximum time people start from the GitHub and then clone that into your local repository. We can do both ways, we will do both ways also, but right now I am starting from the Git, that means I am starting from a local machine. That is why I used the VS Code. I am using the VS Code's terminal to create stuff for me, right? So I created what? I created a file, I created a folder right now, it's called a Mern. So I need to go into that Mern, right? I need to go into that folder to create files in it. So I say CD Mern. Now I am in a Mern, as you could see I'm in a Mern, and it is empty, but there are always two hidden files in it. If I say ls, it will be empty, but if I say ls minus a means show me the hidden files, there will be the dot and the double dot. The dot is the root, that means the current folder, okay, and the double dot means the parent folder. Yani ki dot means the root, that is the Mern folder, and double dot means the parent folder of Mern, that is the desktop, क्योंकि Mern desktop के अंदर है, ठीक है। I can open up here, I can say open, okay, minus a, then applications में Visual Studio Code app, code.app index.app, या सिंपल हम क्या करेंगे काम, हम यहाँ से जाएंगे फाइल ओपन फोल्डर, और हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, और डेस्कटॉप पे हमने ये Mern बनाया है अभी, इसको हम ओपन करेंगे, जो ना अभी बनाया ओपन Mern, तो Mern ओपन हो गया।
इसमें ये एम्प्टी है टोटली, ठीक है। आई कैन क्रिएट फाइल्स फ्रॉम हियर और आई कैन क्रिएट फ्रॉम द टर्मिनल। टर्मिनल मेरा बंद हो गया तो मैं न्यू टर्मिनल करूँगा यहाँ पे। अभी हम कहाँ पर हैं, हम मर्न के अंदर ही है, बिकॉज वाई इट्स ओपनिंग अप द present working directory, pwd, that's called present working directory. In the Mac I got a user Dr. Junaid, then desktop, on the then there's a folder Mern. ठीक है जी, सबको चल रहा है ठीक से, आ रही समझ में? तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक फोल्डर बनाया बस। अब इस फोल्डर में मैं कोई फाइल बनाऊंगा, और या तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू फाइल कहेंगे, यहाँ पे सीधे आपकी मर्जी है, या अगर यहाँ से करना चाहते हो गिट से तो आपको करना पड़ेगा टच। क्या करना पड़ेगा? आई से टच एंड देन आई से index.html. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ फाइल विच इज़ index.html, जैसे हम करते थे, या अब मैं गिट से कर रहा हूँ। ये तो कोई सीधी नहीं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वी नीड टू लर्न द गिट कमांड्स। सो टच index.html, उससे index.html बन गई। आई विल गो इन टू इट, I will put up a comment, I will emit in it, and I create some stuff here and so on. So I created, and I say command S, save it. Okay, now my file is saved, and I created one file. If I say now ls minus a, so it is having minus a means hidden files, right? And ls means see the directory. Like dir command जो आपकी DOS की होती है, DOS की dir command, it is the same thing. Now आपके पास एक तो करंट डायरेक्टरी है, एक तो पेरेंट डायरेक्टरी है, और index.html है। ये दो हिडन थी, ये आपको दिखी -a से, लेकिन ये गिट रिपॉजिटरी नहीं है क्योंकि इसमें .git नहीं है। इसमें .git अगर होता तो ये नॉर्मल जिस तरह हम अभी तक करते थे, लेकिन हम ऐसे नहीं करते प्रोजेक्ट, हम रिपॉजिटरी बनाते हैं, वर्जन कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ हाउ वी एक्चुअली डेवलप आवर प्रोजेक्ट्स। अच्छा जी, तो अभी तक हमने क्या बनाया? हमने index.html बनाई, वो बनाई हमने किस में? मर्न में, ठीक है। लेकिन अब क्या ये डायरेक्टरी जो मेरी है मर्न इस वक्त, क्या ये गिट डायरेक्टरी है? आई एम आस्किंग क्वेश्चन, इज दिस ए गिट डायरेक्टरी? No. I mean to say git repository. No. Why? What is lacking in it? There is a one hidden file. .git is. So if I say git, I'm actually in a folder mern, right? As you could see, I'm in a folder mern. If I say git and then I say initialize or init and press enter, okay? Now, if I say ls minus a, what do you see? What's the difference now? What happened now? After doing git init means initialize this mern, create this mern as a git repository. Now as you could see, after the dot and double dot, here is the .git, and here it was. Is it visible my screen? Yes, sir. Now it's the git. Now when there is a git, what does it mean? A repository. It is Git. it is now the git repository. Now it has become the git repository because I have initialized it git on this folder. Now it is a hidden file, it won't be seen here, right? Because it's a hidden file .git. So that means if I say git status now, if I say git status, I want to see what is the status of my files in the git. Now it is telling me that you got one untracked file. You got what? Untracked file. If you see here, I told you that when you have working directory and you create, but it should be now, if at all it is a git directory, right? So how you create a git directory first to make this directory as a git directory? How you do that? Git init. You created what? Using git? Tell me, everybody. Git init. आपने एक डायरेक्टरी बनाई, फोल्डर बनाया, इसको आपको बनाना है लेकिन गिट रिपोजिटरी, तो आप गिट इनिट लगाओ कमांड, तो यह आपका रिपोजिटरी। क्यों? इसमें अब एक तो डॉट होगा, एक तो डबल डॉट होगा, और .git भी होगा, और बाकी जो आपने इसमें फाइल्स बनाई वो सारी होंगी। लेकिन इसमें जो फाइल्स हैं वो सब फाइल्स क्या है? अनट्रैक्ड TRSCKED है। अनट्रैक्ड क्यों है? क्योंकि वो अभी गिट फोल्डर में नहीं है। नहीं, वो है इस फोल्डर में, लेकिन वो स्टेजिंग एरिया में नहीं है। वो स्टेजिंग एरिया में
नहीं है, क्योंकि जो स्टेजिंग एरिया हमारा सेकंड फोल्ड जो होता है हमारे पास फोल्डर, उसमें ये फाइल्स नहीं है, क्योंकि स्टेजिंग एरिया के बाद हमें उसको किस में लगाना है, लोकल रिपोजिटरी में। अगर स्टेजिंग एरिया में आपको लगाना है कोई फाइल यहाँ से, उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, ये कमांड git add। सो git add से वो यहाँ से जाएगी किस में, स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया में। और स्टेजिंग एरिया से फिर जब हमें लोकल गिट रिपोजिटरी में लगाना पड़ेगा तो हमें क्या कमांड लगानी है, git commit। और लास्ट में जब हम लोकल रिपोजिटरी से हम गिट हब में लगाएंगे, वी नीड टू डू व्हाट, पुश। तो अभी क्या करना चाहिए इसके लिए बताओ मुझे, अनट्रैक्ड फाइल मेरे पास है, क्या करना चाहिए, गिट ऐड। ये बोल भी रहा है देखो, यूज गिट ऐड टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड, टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड, क्योंकि इसमें गिट ऐड लगा के स्टेजिंग एरिया में आ जाएगा, तो फिर जो वहाँ पे बनेगा दैट कैन बी कमिटेड, सो दैट इट कैन गो इनटू लोकल गिट रिपोजिटरी। ठीक हो गया, समझ में आई। तो कुल मिला, पहले स्टोरी बताओ मुझे, पहले पूरा स्टोरी बताओ मुझे, वेयर आर यू गाइस, कि पहले आपकी फाइल जो है ना, आमिर गेटिंग, यस सर। तो जो पहली आपकी डायरेक्टरी है, जो आपकी पहले क्या बनाएंगे आप, फोल्डर बनाएंगे। अगर आप यहाँ से अपने लोकल मशीन से शुरू कर रहे हैं, कल मैं दिखाऊंगा आपको, अगर टाइम आया आज ही दिखाऊंगा, लेकिन वैसे आज टाइम नहीं आएगा, अभी और बहुत सारा काम करना है इसमें। तो अगर आपका जो फाइल पहले जो आपकी है, जो आपका फोल्डर है, उसमें आप फाइल्स बनाओगे, चाहे आप टच से बनाओ या चाहे सीधे आप VS कोड से बनाओ, लेकिन ये पहले आपका फोल्डर क्या होना चाहिए, गिट रिपोजिटरी। गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए कौन सी कमांड लगेगी, गिट इनिट लगाना है पहले हमने, गिट इनिट। ठीक है, तो गिट इनिट लगाने से क्या हो जाएगा, ये गिट रिपोजिटरी बनेगी नंबर 1। तो इसमें डॉट गिट आ जाएगा, अगर हम ls-a करेंगे, देखेंगे लिस्ट करेंगे डायरेक्टरीज, तो वहाँ पे वो गिट दिखाएगा। दूसरी बात, अब जब आपने स्टेटस किया, गिट स्टेटस, आपने कहा देखो मैं स्टेटस देखता हूँ अपने फाइल्स का क्या मसला है, उसने कहा कि आपने एक भी कमिट भी नहीं किया, और आपकी ब्रांच जो है मेन ब्रांच है, यानी कि मेन ब्रांच क्या है, कि जो एक ब्रांच है जिसमें आप वर्जन्स को कंट्रोल करोगे। लेकिन अगर आपके दूसरा बंदा है तो उसके पास दूसरी ब्रांच निकलेगी, तीसरा बंदा है वो तीसरी ब्रांच, सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन में बता रहा हूँ मैं। फिलहाल हमारे पास एक ही ब्रांच है, दैट्स द मेन ब्रांच, और कमिट हमने कुछ नहीं किया। और ये जो है ये अनट्रैक्ड में आ रहा है, क्योंकि ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल है, अभी ये स्टेजिंग एरिया में नहीं गया है। स्टेजिंग एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड करना पड़ेगा और फाइल नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी फाइल वो बनेगी जो कि स्टेजिंग एरिया में है, उसको आप क्या कर सकते हो, कमिट। ठीक है, बात में आई। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ यहाँ पे, हाँ जी, गिट ऐड। मैं कहूँगा गिट ऐड, वेरी गुड। गिट ऐड किसको करूँगा, गिट ऐड फाइल नेम, फाइल नेम का क्या है, index.html। जब मैंने गिट ऐड किया index.html, उसने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन अब मैं स्टेटस दिखूंगा, हाउ आई विल सी द स्टेटस, गिट स्टेटस, राइट। जब मैं गिट स्टेटस दिखूंगा, अब मैं बता रहा है कि भाई आपने कमिट तो कोई नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अब आप कमिट कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो ये index फाइल है अब ये न्यू फाइल है। अभी अगर आप ऊपर देखोगे, ये जो index फाइल दिख रहा था ये अनट्रैक्ड फाइल है, अभी अनट्रैक्ड नहीं करा, अभी ग्रीन में आ गई, अभी कहता है ये न्यू फाइल है। न्यू फाइल क्यों कह रहा है, क्योंकि अब ये कहाँ पर है आपकी, किस एरिया में है, स्टेजिंग एरिया। अब स्टेजिंग एरिया में है। ये जो फाइल थी ये कहाँ पे थी, अनट्रैक्ड। ये वर्किंग डायरेक्टरी में थी पहले, ऐड करने से पहले। जब आपने इसको ऐड किया गिट ऐड करके, है ना, जब आपने क्या किया, गिट ऐड कहाँ पे किया हमने, ये किया हमने, गिट ऐड index.html किया हमने। उसके बाद ये अब गई किस एरिया में, स्टेजिंग एरिया में गई। अब अगर स्टेजिंग एरिया में गई, अब क्या कर सकते, इसको आप क्या कर सकते हो, कमिट कर सकते हो ना, कमिट। तो जब आप कमिट करोगे ये आपका पहला वर्जन बनेगा, जब आप कमिट करोगे ये आपका पहला वर्जन बनेगा। इसलिए मैं क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा मैं इसको, करो गिट कमिट, गिट, इसमें फाइल नेम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कमिट हो सकता है, एक फाइल हो सकती है कमिट, अगर 50 भी होती है वो सारी कमिट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपने कोई छुपानी है तो फिर गिट इग्नोर करना पड़ेगा उसको, वो कल मैं दिखाऊंगा। फिलहाल आप गिट कमिट करोगे, लेकिन उसमें आप एक मैसेज भी दोगे, मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैसेज से हमें पता चलता है कि हमने क्या किया था इस वक्त,
हम प्रॉपर मैसेज देते हैं कि हमने इस वक्त क्या किया था। मैं कहूँगा इस वक्त मैंने index.html बनाई थी, index.html इज़ क्रिएटेड। अब ये तो इसी पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, पहले मैंने इस पर काम किया होगा वगैरह वगैरह, मैंने कुछ बटन्स बनाया, ये किया वो किया, फ्रंट एंड बनाया, कुछ बनाया, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई साहब मैंने ये काम किया था इसमें, ठीक है ना। यहाँ तक इतना मुझको वो मुत। सो ऐसे गिट कमिट -m एक मैसेज आप देते हो। मैसेज से क्या होगा कि ये कमिट के वक्त ये मैसेज आपको आएगी, ताकि आपको पता चलेगा कि जब आप कल को रोल बैक करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, इस मैसेज से आपको पता चलेगा कि मैं को तामस काम कर कहाँ तक मैं पहुँचा था। फेयर एनफ, गॉट इट। नाउ व्हेन यू से एंटर and it is saying one file change, 9 insertions, create mode this, index.html. Now if I say git status, if I say git status, right, now it is telling me that there is nothing to commit, और एक आपकी जो है ना ब्रांच बन चुकी है ऑन ब्रांच मेन, वहाँ commit हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो तो you could say git log, you can say what, git log। अब git log जब आप करोगे तो गिट लॉग में आपको ये डिटेल बताएगा कि भाई जो आपने कमेंट किया ना उसका आईडी पहले बताएगा, ये प्रॉपर आईडी देगा उसको, ठीक है। तो ऑथर कहेगा किसने किया, क्या डेट था उस वक्त, ओके। और वो कमेंट जो आपने मैसेज की थी वो भी बताएगा कि इसका मैसेज क्या था, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहते हो साथ उस कमेंट के साथ। और आपकी ये फाइल माशाल्लाह कमेंट हो गई। ठीक हो गया, बात में आई, ठीक है। अब बताओ, अब मैं और 2 फाइल्स बनाना चाहता हूँ, एक मैं style.cs बनाना चाहता हूँ और मैं script.js बनाना चाहता हूँ। 2 फाइल्स बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊंगा? यहाँ से I will say touch style.css, तो बन गई यहाँ देखो ऊपर, ओके। और एक बनाना चाहूँगा टच, उसका नाम क्या रखूँगा मैं, script.js, बन गई मेरी 2 फाइल्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँगा गिट स्टेटस तो क्या देगा इंफॉर्मेशन, गिट स्टेटस। तो अब अनट्रैक्ड में 2 फाइल्स आ गई ना, बस में आई। अनट्रैक्ड में क्या आ गई, 2 फाइल्स आ गई। कौन सी फाइल्स आ गई? 2 script.js and style.cs। अच्छा, कहाँ पे होंगी ये फाइल्स कहाँ पे हैं? क्या ये वर्किंग डायरेक्टरी में है या स्टेजिंग एरिया में है, गिट रिपोजिटरी में है? वर्किंग एरिया से अगर मुझे कहाँ लेना चाहिए इनको, स्टेजिंग एरिया में। कैसे लूँगा, गिट एड, उसके बाद क्या कहूँगा, फाइल नेम का नाम। तो पहला यार लिखूँगा script.js, उसके बाद git add style.js, या मैं डॉट कहूँगा। डॉट का मतलब होता है जितनी भी फाइल्स आप सबको कर लो ऐड, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तो आप एक ही को कर लो, आपकी मर्जी है किस किस को ऐड करोगे, है ना। तो जिसको ऐड आप ऐड करोगे वही कमेंट हो सकता है, जिसको ऐड नहीं किया वो वहीं रहेगा, वो कभी कमेंट होगा ही नहीं, वो आपके वर्जन में कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। और ना ही वो कभी गिटहब पे चला जाएगा, वो आपके लोकली आपके मशीन पे रहेगा, लेकिन वो आपको वहाँ पे नहीं चला जाएगा क्योंकि आपने उसको ऐड ही नहीं किया। जब मैं डॉट कहूँगा तो सबका बैंड बजेगा ना। इफ़ आई से व्हाट, इफ़ आई से गिट स्टेटस, तो अब मेरी 2 कहता है कि न्यू फाइल्स 2 है, script.js style.js। ये न्यू फाइल्स कहाँ पर है? अब ये 2 staging बता रहा है, ये स्टेज हो गया। अगर आप इसको अनस्टेज भी करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो आप, अगर अनस्टेज करना चाहते हो, ठीक है। तो गिट रिस्टोर कह सकते हो कि वापस आ जाएगा। अगर आप स्टेजिंग एरिया से बाहर ही निकालना चाहते हो ताकि ये कमेंट ना हो, तो उसके लिए आप गिट रिस्टोर कह सकते हो, और उसके बाद माइनस स्टेज्ड और फाइल का नाम लिख सकते हो कि कौन सी फाइल आप अनस्टेज करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं फ़िलहाल वापस नहीं लाना चाहता, बल्कि मैं इनको कमिट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो कमिट करने के लिए क्या करूँ मैं, git commit -m, -m, और उसके बाद कोई मैसेज देंगे, फॉर एग्जांपल क्रिएटेड script.js, और बताओ, and style.css। मैंने चेंज ही नहीं की उसमें पहले कुछ चेंज भी करनी थी ना। चलो फिलहाल इसमें एक चीज़ करेंगे हम, इसको हम देखो यहाँ पे a दिखा रहा है, ठीक है। सो अब अगर हम करेंगे इसमें script.js एंड style.css।
style.css, ठीक है, हो गया। अब हम कहेंगे git क्या बोलते हैं, git status क्या आ जाएगा हमें, कोई तो है नहीं, वो सारे हो क्लीन है ना, वर्किंग ट्री क्लीन है, नथिंग टू कमेंट, वो सारे रिपोजिटरी में आ गए अब, ठीक हो गया। अब हम कुछ चेंजेस करेंगे इसमें, क्या करेंगे, जैसे script.js है, इसमें हम चेंज करेंगे कुछ, लिखो, मैं कुछ भी चेंज करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैंने चेंज की, इसमें मैं चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल आई से p टैग और उसका कलर दूंगा मैं color रेड, मैंने की चेंजेस कुछ, ठीक है। script.js में भी चेंज करेंगे कुछ, फॉर एग्जांपल प्रॉपरली लेट a equals to 7 whatever anything right, control s। तो जो ही आप इसको सेव कर रहे हो तो आप देखो m आता है मॉडिफाइड। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँगा, अब अगर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, git status, तो क्या बता रहा है, मॉडिफाइड आ गए ना अब, ठीक है। हाँ जी, हेलो, कहाँ हो, आर यू गाइस विद मी, हेलो, अबे यार इंटरनेट का ऐसी की तैसी हो गई, हेलो, आर यू गाइस विद मी, हाँ जी, आर यू गाइस विद मी, हेलो, यस सर। ओके, इंटरनेट हो गया था शायद बंद, हाँ यस सर। इंटरनेट शो हुआ था क्या, कहाँ तक हम मैंने बताया था आपको, मैंने यहाँ पे इसमें चेंजेस लाई, इसको कलर रेड कर दिया और script.js में कुछ डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं जब इसमें देख रहा हूँ कि git status करके, तो वो अब क्या दिखा रहा है, मॉडिफाइड, और यहाँ पे भी देखो VS कोड जो है इसको m लगा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें क्यों आ रही है, m पहले नहीं आती थी, अब कैसे आ गई, क्योंकि ये अब गिट रिपोजिटरी है, ये नॉर्मल रिपोजिटरी नहीं है, अब ये गिट रिपोजिटरी है आपका मर्न फोल्डर, तो ये आपका m शम दिखा रहा है कि भाई मॉडिफाई हो गया, और जब गिट स्टेटस भी आपने किया तो मॉडिफाई हो गया, ठीक है, ओके। तो अगर आपको ये नया अपडेट डालना है, अभी अभी ये मॉडिफाई कहाँ पर है, लोकल वर्किंग डायरेक्टरी। तो आप देखो ये बोल रहे हैं भाई चेंज इज नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट, इसको कमिट नहीं कर सकते क्योंकि आपने स्टेजिंग एरिया में डाला नहीं है। स्टेजिंग एरिया डालने के लिए क्या करोगे, git add, मैंने डॉट कहा, तो डॉट से क्या हो गया, अब क्या बता रहा है, अब ग्रीन आ गया ना, ठीक है। अब एक कमिट हो सकता है, तो क्या क्या कहूँगा मैं, गिट कमिट, माइनस एम मैसेज दे दो, अपडेटेड स्टाइल डॉट css एंड js script.js अपडेटेड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ, इसको समझ नहीं आ रहा मुझे बताएगा, कोई मसला नहीं। तो हो गया अब मसला, अगर हम कहेंगे गिट स्टेटस अब, तो अब तीनों की तीनों फाइल्स कहाँ पे हमारे पास है, गिटहब, ये गिटहब के रिपोजिटरी में है अब, ठीक है। अब हम कुछ अननोन अब हम कुछ चेंजेस करेंगे, हाँ जी, यस सर अभी पुश मत किया, अभी कहाँ गिटहब रिपोजिटरी में नहीं, होगा? गिटहब नहीं, गिट रिपोजिटरी में, हाँ गिट रिपोजिटरी, गिट रिपोजिटरी में है, गिटहब में तो अभी है नहीं, ठीक है। अच्छा, ये तो गिट की बात ही हो रही है, गिटहब तो हमने किया ही नहीं अभी, अच्छा दैट्स गुड। नाउ हमने कुछ चेंजेस की, सर मुझे कुछ एरर्स आते हैं, कहाँ पे, सर ये देखिए, मतलब यहाँ से ये दिखा रहा है टच, द टर्म टच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेम cmd let function script। जब मैं कुछ भी कर रहा था, क्रिएट फाइल कर रहा था, टच के जरिए नहीं हो रहा है। आपका गिट वर्जन चलता है इसमें, जी, टर्मिनल टर्मिनल VS
VS कोड यूज कर रहा था, नहीं, गिट बैश भी है। VS कोड में जो टर्मिनल है ना, जो टर्मिनल जी वो आपने खोला वहाँ पे गिट माइनस माइनस वर्जन किया आपने, वो चल रहा है? गिट, जी वो चल रहा था, कल भी देखा वो चल रहा था जी। गिट वर्जन 2.42.0 विंडो .1 जी। वो दिखा रहा है ना? फिर जी आप डेस्कटॉप पे गए, फिर वहाँ पे फोल्डर बनाया आपने ऐसे, जी फोल्डर जी 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 फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया आपने? जी जी वो भी बनाया था। फिर क्या बोल रहे हैं आप? कोई भी कमांड अगर यूज कर रहा हूँ तो द टर्म, जैसे कि ऐड गिट ऐड नहीं हो रहा है, फाइल ही नहीं बन रही पहले। वर्जन मगर चला? जी देखो, अगर वर्जन चला तो फिर सारी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि ठीक है मेरे, फिर गिट देखिए इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जी जी फिर गिट इंस्टॉल्ड है, दैट मीन्स कि कुछ और इशू है। सर ये सही डायरेक्टरी में नहीं होगा शायद इसमें। नहीं सर ये जो गेट एड वगैरह वाली कमांड है ना वो चल रही है, लेकिन जैसे फाइल बनाए ना टच से, उसमें आ रहा है एरर। टच से फाइल बन गया एरर। अभी आप टच छोड़ो, आप सीधी यहाँ से फाइल बनाओ। ठीक है, लेट मी सी, देयर विल बी सम इशू विद द, मैं बताऊंगा आपको इसमें क्या। जी वहां से तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अलग फोल्डर्स भी ऐड करता हूँ, गिट ऐड भी कर लेता हूँ, गिट हब में भी करता हूँ वैसे। टच नहीं बस चल रहा। टर्मिनल के थ्रू नहीं हो रहा है मुझे। बाकियों को हो रहा है, विंडोज़ जो ना, विंडोज़ वाले किसी को हुआ? मैंने भी वैसे ही किया, कैसे? सीधे जाके वहाँ पे फाइल बनाई थी फोल्डर में, वहाँ से यहाँ से नहीं बनी? हाँ, वहाँ से जाके यहाँ से नहीं बनी? नो सर। हाँ, कोई बात, मसला नहीं, आप फिलहाल ऐसे ही बनाओ। मैं आपको बताऊंगा, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट कमांड्स हैं विंडोज़ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना ls-a, आपको शायद ls-a नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ ना इसको ls, यहाँ पे वो भी नहीं चल ls-a। रहा है सर। हाँ, उसको भी गेट चाइल्ड आइटम पैरामीटर कैन नॉट बी प्रोसेस्ड बिकॉज़ आपका पैरामीटर। नहीं, विंडोज़ में थोड़ी डिफरेंट कमांड्स होती हैं। जैसे आपको क्या ls माइनस सर हिडन, टच आप टच उसको बोल रहे हैं ज़रा आप शायद ये ये लिनक्स की कमांड है। लेट लिसन टू मी, आप ये ls माइनस हिडन लिखो, HIDDEN, एंटर। देखो ये चल रही है। हेलो। जी सर चल रही है वो। बेसिकली विंडोज़ के लिए थोड़े से डिफरेंट कमांड्स मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है, फिलहाल वैसे ही बनाओ। ठीक है, आप फिलहाल ऐसे बनाओ, बाकी तो चलेगा ना। ये जैसे गिट स्टेटस हो गया, वो चल रहा है ना? हाँ जी जी वो चल रहा है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे ls-a करते हैं ना, ये मैक में चलता है, विंडोज़ में थोड़े से डिफरेंट हो, जैसे ls- हिडन हम लिखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ खुद विंडोज़ का मसला, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना अब ये विंडोज़ में काम किए हुए, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, ठीक है, विंडोज़ में क्या 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 लिखना है आपको। जी सर। अच्छा जी, मेक डायरेक्टरी तो चलेगा, मेक डायरेक्टरी तो चलेगा ना? जी वाकई चल रहे हैं, मतलब ये कोई कमांड ऐसी है। कौन सी नहीं चल रही थी, और कौन सी नहीं चल रही थी? टच नहीं चल रहा था। टच नहीं चल रहा था, जैसे फाइल अगर बनानी पड़ती तो वैसे ही एडिट, बनानी हो। अगर आप एडिट कहोगे, एडिट index.html, एडिट स्पेस index.html, विंडोज़ में क्या करते हैं मैं भूल गया हूँ। चलो उसको मैं बताऊंगा, वक्त ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, आई विल टेल यू टुमारो। फिलहाल अब यहाँ से बनाओ, बाकी कमांड्स आपको चलेंगी। ठीक हो गया? हेलो। जी 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 सर। अगर मैं कह रहा हूँ गिट स्टेटस, तो मेरे को क्या चल रहा है, मैं भूल ही गया हम क्या कहाँ पे बोल रहे थे। ये मॉडिफाई हो गई है फाइल, इसको हमने ऐड नहीं, रिस्टोर फाइल करेंगे, यूज़ गिट ऐड फाइल्स टू अपडेट व्हाट विल बी कमिटेड। देखो अब हमने चेंज की ना, यहाँ पे मैंने चेंज की, लेकिन मैंने एक ख़राब चेंज की। मैंने क्या किया चेंज, मैंने सेव किया, कमांड एस सेव किया मैंने, और यहाँ पर भी मैंने कुछ चेंजेस की वगैरह वगैरह वगैरह। या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ही चेंज की थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ही चेंज की थी, यहाँ पे मैंने बाकी ठीक लिख रहा था, मगर यहाँ पे मैंने लेट बी लिखा कुछ, और ऐसे कुछ लिखा फॉर एग्जांपल, या मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारा चीज़ लिखा। फॉर एग्जांपल मैं बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अब एरर्स आ रहे हैं, या मुझे ये नहीं चाहिए था, या रिक्वायरमेंट्स ही चेंज हो गई, या मैंने कुछ समझा था कि इसको ऐसे करना था, जबकि वैसा था नहीं, और मैं कर रहा हूँ काम, एक दिन पूरा मैंने किया, लेकिन अब जो इस फाइल में जो है,
मैंने जितना काम किया था और मैंने बहुत ऐड किया, ऊपर नीचे दाएं बाएं, अब मुझे कहाँ याद है कि मेरा पुराना फाइल क्या थी और क्या नहीं थी। आपको समझ आ रही है बात मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है ना। लेकिन मैंने सेव किया, जब मैंने सेव किया, मैं अब कल आ रहा हूँ और मैं अपना VS कोड खोल रहा हूँ, फिर मैंने सोचा ओ मुझे तो ये करना ही नहीं चाहिए, मैंने तो गलत ही क्वेश्चन, मैंने तो रिक्वायरमेंट ही गलत समझी थी। लेकिन जो मैं कल कर रहा था वो ठीक था, जो मैंने कमेंट किया वो ठीक था, वो ओके था, मैंने किया था। लेकिन जो अब मैं 1-2 दिन से इसमें काम कर रहा था और मैंने बहुत चेंज की इसमें, और ये करनी ही नहीं थी। अब कहाँ चेंज मैंने की, कहाँ नहीं की, मुझे नहीं पता। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वर्जन कंट्रोल है। ठीक है। तो पहला काम हम कर सकते हैं इसमें कि हम कह सकते हैं कि भाई साहब गिट डिफरेंस, हम कैन से गिट diff, जैसे ये style.css मेरा हो गया। तो ये बताएगा यहाँ पे कि भाई साहब आपका जो ये ग्रीन है ना, आपका जो वाइट जो वाइट है वो आपने लिखा था कल, जो कमेंट आपने किया, कमेंट कहाँ पर आपके हैं? रिपोजिटरी में। जो आपने रिपोजिटरी में रखा था वो ये वाइट वाला, जो ये ग्रीन वाला है ना, ये वाला बंदा आपने ये तब से लिखा है जब से आपने कमेंट नहीं किया। ठीक हो गया? समझ में आ रही बात? हाँ जी। Yes sir. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes sir. मैंने टर्मिनल ही बंद किया यार, न्यू टर्मिनल, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ इफ आई से गिट स्टेटस, अच्छा जी, अब ये मॉडिफाई हो गई ना, दोनों फाइल्स मॉडिफाई। मैंने भी इसमें कमेंट नहीं करना, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम आ गई, मुझे ये करना नहीं था। लेकिन अब मैंने गिट, अगर मैं गिट डिफरेंस कह रहा हूँ तो उससे क्या हो जाता है कि मुझे दिखा रहा है कि जो ग्रीन था वो नहीं, वो चीज़ है जो आपने लिखी है नहीं, और जो वाइट में था आपको डिफरेंट कलर भी आ सकता है विंडोज़ में, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो आपने कमेंट किया था उसका एक कलर होगा, और जो आपने डिफरेंट लिखा फिर उसके बाद जो आपने कमेंट नहीं किया, जो अनस्टेज्ड है अभी, ओके, उसका कलर आपको डिफरेंट दिखेगा। और गिट डिफरेंस से आपको दिख रहा है। आई कैन क्लियर इट टू क्लियर द क्लटर। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि रोल बैक करूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं रोल बैक करूँ, मैं जो मैंने अभी एडिट किया वो सारा गड़बड़ है, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ? चेकआउट, क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ जी। सो इफ आई से गिट चेकआउट, ठीक है, किसको मैं चेकआउट करना चाहता हूँ? style.css, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी फाइल जो यहाँ पे थी ना, आपने देखा इसको, जो ऊपर फाइल है वो गायब हो गया सारा। जो आपने इसमें बकवास लिखा था, जो नहीं लिखना चाहिए था, वो सब खत्म। क्योंकि ये उसने लाई किस वर्जन पे? जो वर्किंग है, जो प्रीवियस वर्जन था, जो प्रीवियस वर्किंग वर्जन था, जो प्रीवियस वर्किंग वर्जन था, उस पे लाया इसने। तो इससे आपका जो है काम हो गया आसान। हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ आई? हाँ जी। यस सर। गेटिंग? जी सर। हाँ, तो इससे आपने अब आपने क्या किया? रोल बैक। अब आपने क्या किया? यू कैन रोल बैक। तो अब आप अगर गिट स्टेटस कहोगे, आप गिट स्टेटस कहोगे आप, तो अब आपको script.js मॉडिफाइड दिखा रहा है, लेकिन वो गायब हो गया। जो मॉडिफाई वो अब मॉडिफाई रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ख़त्म है। क्योंकि आपका जो ये फाइल है ये अब मॉडिफाई नहीं है। ये इसमें m देखो, इसमें m लगा है, इसमें m नहीं लगा। बस में आ रही? यानी कि देखो, मैंने इसमें जो चेंजेस लाई थी, पता नहीं क्या क्या चेंज लाई मैंने, इसमें एरर डाले, पता नहीं क्या क्या बकवास डाला था। तो अगर अब मैं सेव किया Command+S, जो ही मैं यहाँ पे देखूँगा तो ये दिखा रहा है कुछ, इसमें ये मसले हो गए कुछ हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगा गिट चेकआउट, तो ये वापस लाएगा इसको अपने स्टेट के अंदर, और ये मॉडिफाई ख़त्म। और अगर इसमें आपको चेंजेस ठीक लगी, ठीक है, अगर आपको चेंजेस ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगा कि ना मुझे इसको भी रोल बैक करना चाहिए, तो कोई मसला नहीं, आप इसको भी रोल बैक कर सकते हो। कि आप कह सकते हो यहाँ पे जो मेरा ये वाला है ना, script script.js जो है ना, इसको भी चेकआउट करो, रोल बैक करो। तो इसमें भी मॉडिफाई ख़त्म, और ये वापस आ गया अपने वर्जन पे। जो वहाँ पे वर्जन होगा बिल्कुल वही होगा। जिधर भी आपने चेंज की है, जहाँ भी आपने चेंज किया, किसी का कलर चेंज किया, कहीं पे आपने शैडो लगाई थी, कहीं पे आपने पता नहीं क्या क्या किया था, वो सारे का सारा जो है ख़त्म होके अपनी जगह आ जाएगा। वरना अगर आपको चाहिए था कि ठीक था ये चेंजेस, तो आप इसको
कमिट कर सकते थे। अब ये तीनों फाइल कहाँ पर है बताओ मुझे। ये भी गिट रिपोजिटरी लोकल गिट रिपोजिटरी में है। लोकल if I say git repository. if I say git status तो ये बता रहा है कि भाई साहब के ऑन में ब्रांच मेन में है नथिंग टू कमिट, क्योंकि सारे कमिट हो चुके हैं। कोई भी इसमें एक फाइल नहीं है जो कमिट नहीं है, सारे के सारे लोकल रिपोजिटरी में है। इफ़ आई से गिट लॉग, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो सारा उसका जो बता रहा है कि आपके पास 3 कमेंट्स हुए हैं, ठीक है, और उनका आईडी ये है और इस टाइम पे किया आपने, और उस वक्त आपने जो मैसेजेस दी है क्रिएट स्क्रिप्ट डॉट जी स्टाइल डॉट जी यहाँ पे आपने ये कहा था, तो वो सारा चीज़ इसमें है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने गिट के ऊपर अपने लोकल सिस्टम के अंदर गिट रिपोजिटरी सक्सेसफुली बना दी 3 स्टेजेस में। पहले वर्किंग डायरेक्टरी हमारी बनाई, उसमें फाइल्स बनाए, फिर इस वर्किंग डायरेक्टरी को हमने गिट इनिट करके गिट रिपोजिटरी बनाया पहले, ठीक है, गिट डायरेक्टरी बनाया इसको, नॉट रिपोजिटरी, गिट रिपोजिटरी यहाँ पर है। फिर इसमें से जो फाइल्स हैं जो आपने अपडेट किए उसको पहले स्टेजिंग में लाया, स्टेजिंग एरिया के लाया यूजिंग द कमांड गिट एड। उसके बाद आपने स्टेजिंग एरिया से लोकल गिट रिपोजिटरी में लाया यूजिंग द गिट कमिट। अब जो लोकल रिपोजिटरी के अंदर है ये अगर आप इंडिविजुअली काम करना चाहते हो इट्स फाइन, आपका वर्जन कंट्रोल आ गया। एज यू कुड सी आई डिड द वर्जन कंट्रोल, राइट। अभी हमने किया ना वर्जन कंट्रोल, वापस गए ना हम अपने वर्जन्स पे, ठीक है। या फिर हमने पहला वर्जन था फिर अपडेट किया, मैंने अपने स्टाइल और स्क्रिप्ट को क्रिएट करके फिर अपडेट भी किया यहाँ पे। इसमें मैंने पता नहीं इसमें क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दिया शायद, ओके मैसेज नहीं दी थी यहाँ पे कमेंट करने के वक्त, वो देनी चाहिए थी कि भाई मैंने अपना जो स्टाइल डॉट सी एस एस है और ये अपडेट किया, तो मैंने कमेंट किया, ये मेरा एक वर्जन बन गया, फिर पहला वर्जन बन गया इस सॉफ्टवेयर का, फिर दूसरा वर्जन बन गया, ये तीसरा वर्जन बन गया, और 3 वर्जन्स हैं एंड आई कैन कम बैक टू इट एंड ऑल। लेकिन अगर मुझे कोलैबोरेशन करनी है, मैं फ़िलहाल एक चीज़ पे काम कर रहा था, दूसरे बंदे दूसरी चीज़ पे काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये अपना लोकल मशीन भी यहाँ पे है, हो सकता है कि मैं फिर कल जाके मेरे पास मल्टीपल ऑफिस हैं, मैं कहीं और जाऊँगा, फिर मुझे काम करना, मेरा लैपटॉप साथ नहीं है, तो मैं कहाँ से अपना फाइल्स लाऊँगा, या मुझे कोलैबोरेशन करनी है दूसरों के साथ, या मुझे अपना वर्क दिखाना है दूसरे लोगों को, ठीक है, जैसे कंपनीज़ को जो मुझे हायर करेंगी, देन आई नीड टू पुट ऑल दीज थिंग्स वायर इन द GitHub। और GitHub जो मेरा है वो वेबसाइट है, और वेबसाइट के ऊपर वो आराम से मुझे दिखेगा, ठीक है, और उसमें सारे जितने भी अपने कमेंट्स किए हैं वो सारे। लेकिन आना क्या चाहिए उसमें, क्या आना चाहिए उसमें, क्या आना चाहिए, हेलो GitHub पे क्या आना चाहिए, बिल्कुल यही सारा जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, मर्न इंडेक्स स्क्रिप्ट स्टाइल जो भी इसके अंदर है, ये सब वहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। What is time? If the time allows, we can continue, but it's 10:34. I think it is enough time. We will continue this tomorrow. इसमें कोई डाउट्स किसी को? हाँ जी। No sir. Anybody